Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my 12th grade students to today's class, and it's a class from Unit 3, that is Enterprise Marketing. And in today's class, we are going to take up a very important topic, that is what is branding. And today we are going to talk about this very important concept. And believe me on this, this is one of the most important classes that you are going to attend with. So please do not miss this class and be the part of this class from beginning till the end, so that you can understand each and every part of the class, and then you can easily take up our rigorous practice section. So without much ado, let's start today's class. It is from Unit 3, that is Enterprise Marketing, and today we are going to talk about a very important concept, that is branding. So in today's class, we are going to take up these 7 points. First is introduction to branding. Second is why products cannot be sold by generic name only. Third point is the total product mix. Fourth point is branding as a concept. Fifth point is various terms relating to branding. Sixth point is qualities of a good brand. And seventh point is entrepreneur's perspective on brand name. So, बच्चों, let's start with the first point, introduction to branding. We know a product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, and or consumption. So, बच्चों, product is something which an entrepreneur observes as a solution to one specific problem. Then he launches that product in the market to gain attention, to acquire a specific niche in the market, or for the consumption of the product. So it is A, and C. It includes physical objects, services, personalities, places, organizations, and ideas. So बच्चों, जब भी हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो कई बार फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को उतारा जाता है मार्केट में, कई बार सर्विसेज को उतारा जाता है, कई बार पर्सनैलिटीज भी ब्रांड्स बनते हैं. आप देखते होंगे कई सुपरस्टार्स होते हैं जो ब्रांड्स की तरह यूज होते हैं. जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं, दैट प्रोडक्ट स्टार्ट्स गेटिंग or starts getting sold in the market. There are certain places, organizations, and ideas which which are being launched as products in order to gain attention, acquisition, and the consumption in the market. Second point, the character of the product may be seen differently by the buyer and the seller. तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जो कैरेक्टर है प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो हमेशा बायर अलग तरीके से देखता है और सेलर अलग तरीके से देखता है. दे बोथ हैव डिफरेंट perspectives. Third point, as a product is any tangible or intangible offering that is required to satisfy the needs or the aspirations of a consumer. Thus, it is important to understand. पर जो प्रोडक्ट कोई टेंजिबल प्रोडक्ट भी हो सकता है जो दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, सर्विसेज विच आर इंटेंजिबल. और इनका पर्पस क्या है कि जो भी समाज के अंदर कस्टमर को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं,
उन प्रॉब्लम से या तो उन्हें निजात दिलाने के लिए या फिर उन प्रॉब्लम्स को आसान बनाने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में उतारे जाते हैं. Thus, it is important to understand point number A, the underlying motives behind buying of the product to ascertain whether the buyer is really satisfied by having the same product. तो बच्चों जो पहला मोटिव है वो ये है कि व्हाट आर द मोटिव्स बिहाइंड बाइंग द प्रोडक्ट. क्यों एक बायर एक प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा. अगर ये बात एंटरप्रेन्योर को क्लियर हो जाए तो वो प्रोडक्ट को और कस्टमाइज कर सकते हैं और इनोवेट करके बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं एंड देन दे कैन प्रोवाइड अ गुड प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स व्हिच विल फील मोर सेटिस्फाइड और फिर वो एंटरप्रेन्योर्स को रिपीट सेल्स और रिपीट बिजनेस देंगे. Whereas to ascertain whether the buyer is really satisfied by having the same product, और ये भी देखना पड़ता है कि भाई जो प्रोडक्ट आपका इस्तेमाल किया जा रहा है क्या बायर रियली उससे सेटिस्फाइड है. अगर है तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं है तो आपको कारण पता होना चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट को बेटर करें और उसकी सेल्स बढ़ाने की कोशिश करें. तो ब्रांड इसीलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में एक अलग पहचान बन सके. People should start seeing you and your product with your brand name and you should have a different identity. Let's move on to the next point. Alternatively, one may say that a product satisfies generic requirement. और बच्चों जेनरिक वर्ड ऐसा है इस पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम के अंदर. तो जेनरिक रिक्वायरमेंट इज द कोर बेनिफिट. अगर कहीं पर भी जेनरिक रिक्वायरमेंट आता है तो मैंने पहले से इस पॉइंट को येलो से मार्क किया हुआ है. And generic means that it provides core benefit a product offers to the customers. अब उसके एग्जांपल्स हैं. दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिए हैं. For example, a refrigerator offers the generic benefits, मतलब उसकी core benefit क्या है, of storing and preserving and cooling food items or similar items. Also, the cell phone is a device used to facilitate communication and other functionalities as well. It is there to make your life easy and comfortable. Next example is the best example is the case study of Satya Bhartade, the founder of Shri Leather. बच्चों इन पर मैंने पूरी डिटेल्ड केस स्टडी आज से 4-5 महीने पहले ही डाल दी थी क्योंकि मैंने कैसे कंटेंट डिजाइन किया है क्लास 11th और क्लास 12th के लिए. जितनी भी केस स्टडीज थी आपकी क्लास 11th की बुक में और क्लास 12th की बुक में मैंने उन्हें सबको पहले ले लिया. मैंने बच्चों को पहले ही करा और उसके बाद में थ्योरी पार्ट के ऊपर आ. तो एक एग्जांपल है केस स्टडी ऑफ सत्य बर्ताडे who was from Bihar and he started Shri Leathers. In unit 2, subhead Satya's business philosophy develops where the importance of a good quality product is discussed. और वो कहते थे चाहे मैं कम बेचूंगा पर जो मेरा प्रोडक्ट होगा ना वो हाईएस्ट क्वालिटी का हो. तो ऐसा होगा कि फादर खरीदे और उनका पोता भी उसको यूज करे. तो दिस इज व्हाट हिज core benefit of the product that is giving to the customers. और ये उस प्रोडक्ट की जेनरिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आप सत्य बर्ता देश के शोरूम से श्री लेदर से अगर आप शू लेते हैं तो उसकी जेनरिक रिक्वायरमेंट क्या है दैट इट इज वेरी ड्यूरेबल, गुड क्वालिटी एंड इट लास्ट लॉन्ग. तो जेनरिक रिक्वायरमेंट का मतलब है कोर बेनिफिट्स. तो मैं इसको एक बार वीआईपी पॉइंट क्या है तो वीआईपी का मतलब है जो बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और बच्चों इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप OTQ एग्जाम में आ जाए. 1 मार्क में भी आ सकता है और 1.5 मार्क में भी आ सकता है. क्वेश्चन भी आ सकता है. Why products cannot be sold with or by generic name? Let's have a look towards it. क्यों प्रोडक्ट्स को आप जेनरिक नेम से सोल्ड नहीं कर सकते.
if products were sold by generic names, it would be very difficult for the marketers to distinguish their products from that of competitors. अगर सभी लोग सिर्फ फ्रिज बेचने लग गए तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी कंपनी कौन सा फ्रिज बना रही। फ्रिज तो तकरीबन सेम होते हैं, बट हाउ यू recognize a fridge? By the company's name, by the name of the brand. For example, LG, for example, Samsung, for example, BPL, for example, Hitachi, and so many different brands आते हैं. But अगर सभी कंपनी सिर्फ फ्रिज बेचने लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको पहचान. Therefore, most marketers give a name brand to their products, which help in identifying and distinguishing their products from that of the contenders or competitors. Thus, branding is an effective differentiation strategy commonly adopted by marketers when dealing with the products which cannot be easily distinguished in terms of tangible features. क्योंकि बच्चों जब भी आप प्रोडक्ट्स को देखोगे, टीवीज देखोगे और उसके नीचे से आप ब्रांड की यू नो बैजिंग हटा देंगे तो सबके फीचर्स सेम होते हैं, पर उन्हें डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है? ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग. तो जो लास्ट पॉइंट है, thus branding is an effective differentiation strategy commonly adopted by marketers when dealing with the products which cannot be easily distinguished in terms of tangible features only. Very very important point. तो इसको भी मैं क्लिप कर देता हूं. SVI. अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर. द टोटल प्रोडक्ट मिक्स. As we know that the entrepreneur must look at the total product mix and decide whether it is balanced in terms of contents, profit, risk and growth or not. अगर बच्चों किसी भी entrepreneur को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो he has to understand the content of the product, कि या वो प्रोडक्ट प्रॉफिट पहुंचा पा रहा है, नहीं पहुंचा पा रहा, रिस्क इन्वॉल्व, ग्रोथ इन्वॉल्व या ग्रोथ नहीं है, वो भी पता होनी चाहिए. अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में तो आपको प्रोडक्ट के सारे बेसिक्स, उसकी निटी ग्रिटीज पता होनी जरूरी. द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इज अ की एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. Thus, product mix will be futile attempt if it does not discuss the following most crucial components. तो कहते हैं जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बिल्कुल फ्यूटाइल, बिल्कुल ही यूजलेस हो जाएगा अगर वो इन सब चीजों को और जो क्रूशियल कंपोनेंट्स है उनको डिस्कस नहीं करता. फॉर एग्जांपल, ब्रांडिंग, लोगो एंड टैगलाइन, लेबलिंग एंड पैकेजिंग. और आज की क्लास में हम सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर बात. तो बच्चों जैसे आपको पता है हमारे क्लास में आपको रेफरेंस पॉइंट देते हैं, तो आज मैंने प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर एक रेफरेंस पॉइंट छोटा सा तैयार किया है which is going to help you to understand what exactly is product mix. Now pay attention on this. This mix, which is product mix, can include variations in product features. तो प्रोडक्ट मिक्स क्या है? ये इंक्लूड करता है वेरिएशंस in product features. For example, pricing, packaging, and other aspects to cater to different customer needs and preferences. For example, a company's product mix might include different models of smartphones, accessories, and related services like warranties and subscription. तो बच्चों जब भी हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट मिक्स में हमेशा प्रोडक्ट से रिलेटेड वेरिएशंस को दिखाया जाता है. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइसिंग, पैकेजिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स जो कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है. फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर प्रेफर करता है 10,000 का मोबाइल, दूसरे कस्टमर प्रेफर करते हैं 15,000 का मोबाइल, तीसरा कस्टमर प्रेफर करते हैं 25,000 का मोबाइल, और फिर एक रेंज है जो 50, 60, 70 पर जाते हैं.
तो उसी प्रकार से जब डिफरेंट प्राइस रेंज में प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट को बेचना होता है, तो उसमें फीचर्स वेरिएशन कर दिया जाता है, प्राइसिंग की वेरिएशन कर दी जाती है, पैकेजिंग की वेरिएशन कर दी जाती है, और कई तरीके के फीचर्स भी हैं जो सस्ते में कम कर दिए जाते हैं, और हायर प्राइस पर उन्हें ऐड कर दिया जाता है। तो दिस इज अबाउट प्रोडक्ट मिक्स। पर कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स फ्यूटाइल है अगर उसमें जिक्र ना हो ब्रांडिंग का, लोगो टैगलाइन ना हो, कुछ लेबल ना किया हो, या पैकेजिंग ना हो उसकी। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, या सॉरी प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं। ब्रांडिंग एज अ कॉन्सेप्ट, लेट्स टेक अप द फर्स्ट पॉइंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट वन, मैंने पहले से इसे मार्क किया हुआ है बच्चों। इट इज अ वीआईपी पॉइंट, और इस पे आपको 101% क्वेश्चन आए। ब्रांडर is a Norwegian word meaning to burn। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के, और एकदम से याद भी हो जाए। लेट टू द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ब्रांड, एक नॉर्वेन ओरिजिन का वर्ड है, जिसको नॉर्वेन लैंग्वेज में कहा जाता है ब्रांडर, और इसी से ओरिजिनेट हुआ है वर्ड ब्रांड। अब होता क्या था बच्चों, इन द ओल्डन डेज द फार्मर्स यूज्ड टू पुट an identification mark using a burning hot iron on the body of the livestock। जो जानवर होते थे, गाय बैल भैंस, जो लाइव स्टॉक होते थे, भेड़ बकरियां, उनको ये बताने के लिए कि भाई ये मेरा स्टॉक है, एक बर्निंग हॉट आयरन रॉड से अपना ब्रांड, अपना नाम, या अपना लोगो, या अपना कोई भी मार्क उनके ऊपर दाग दिया जाता, और वहां से उनकी स्किन बर्न हो जाती थी। तो इसी पहचाने जाते थे कि भाई मेरा लाइफ स्टॉक है, तुम्हारा लाइफ स्टॉक, टू डिस्टिंग्विश देयर पोजेशन फ्रॉम दैट ऑफ अदर। और ये वर्ड है नॉर्वेग, इट्स अ नॉर्वेजियन वर्ड। Similarly, marketers started resorting to branding to distinguishing their offerings that from their competitors। और similarly जो मार्केटर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन्होंने भी अपने ब्रांड को डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉम्पिटिटर से उनको डिफरेंटली मार्क करना शुरू कर दिया। Thus, a brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, which is intended to identify the goods or identity to separate, which is intended, way to separate one company's product from that of another, to identify the goods or services of one seller or group of sellers, and to differentiate them from those of the competitor। I think this is easy. You can easily understand it। अब कुछ जेनरिक ब्रांड नेम्स हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब डिटर्जेंट्स के नाम कैसे हैं, निरमा है, सर्फ है, एयरटेल है, रेन है, और टाइड है, घड़ी है, वूश है, नेक्स्ट डिटर्जेंट है, पेन्स है, पार्कर है, रोटोमैक है, सेलो है, रेनल्ड्स है, और एक मेरे पास पड़ा हुआ है पेन, कार्बोनिक्स है, और दिस पेन पेंटल, न्यू पेन। कार, बीएमडब्ल्यू, होंडा, मारुति, हुंडई, शेवरले, किया, इतने सारे ब्रांड्स हैं। रेफ्रिजरेटर्स, एलजी, वर्लपूल, गोदरेज, हिताची, डेवू, बहुत सारी कंपनीज। टेलीविजन, सोनी, एलजी, वीडियोकॉन, सैमसंग, एक्सेट्रा। मिल्क प्रोडक्ट्स है, अमूल, सारस, मदर डेयरी, पारस है, नमस्ते इंडिया है, एंड इफ विल टॉक अबाउट कॉस्मेटिक्स, पॉन्स, लैक्मे, रेवलॉन, एटसेट्रा। तो ये क्या बताते हैं कि पेन इज अ जेनरिक नेम, बट यस ब्रांड नेम्स आर जेनरिक नेम है। डिटर्जेंट्स है, पेन है, कार है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, कॉस्मेटिक्स है, बट ब्रांड नेम्स आर वेरी वेरी वेरियस टर्म्स रिलेटिंग टू ब्रांड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पे अटेंशन ऑन दिस।
Definition: branding is a process, a tool, a strategy. ब्रांडिंग एक प्रक्रिया है, एक टूल है, एक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति. आर यू गेटिंग? स्ट्रेटजी इज रणनीति. An orientation whereby a name, a sign, or a symbol, etc., is given to a product by the entrepreneur to differentiate his or her product from the rival. ये समझ आ गया होगा. Once a brand name is established in the market, then it becomes difficult to compete. एक बार एक ब्रांड नेम आता है, मार्केट को कैप्चर करता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, तो उसके बाद उसको compete करना डिफिकल्ट होता है. कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान फोकस कीजिएगा बच्चों. पहले हम बात करेंगे ब्रांड की. ब्रांड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट्स अ बिगर टर्म. इट इज यूज्ड टू डिनोट अ नेम, term, sign, symbol, design, or combination of them too. ये कॉम्प्रिहेंसिव मिलजुल कर बनाई हुई टर्म है. ये क्या डिनोट करती है? एक नाम को डिनोट करती है, एक टर्म को डिनोट करती है, एक साइन को भी डिनोट करती है, या कर सकती है सिंबल को भी, डिजाइन को भी, या फिर इन सब के कॉम्बिनेशन. फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ वन फर्म. इसलिए काम आती है ताकि आप एक कंपनी के प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सके. Differentiate them from those of the competitor. Brand has three components: brand name, brand mark, and trademark. Let's have a look towards. A brand name is that part of the brand which can be vocalized, can be spoken. It is like a newborn child and its name, and his name, her name. Mercedes, Woodland, Asian Paints, Pepsi, Maggie, Uncle Chips, Lay's are few examples of brand names. Brand mark. A brand mark is a part of a brand which can be recognized but cannot be vocalized. आप उसको जैसे ही मार्क को देखते हैं ना, आपको उस ब्रांड का ख्याल दिमाग में आता है. And it is not utterable. It appears in the form of a symbol, design, or a distinct color scheme. For example, Girl of Amul, Maharaja of Air India, रोनाल्ड ऑफ मैकडोनल्ड. तो जैसे आप इनको देखते हैं आपके दिमाग में वो कंपनीज आ जाती. तो ये है ब्रांड मार्क. अब ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क इज बिजनेस का. अ ब्रांड और पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट यूज बाय अदर फर्म्स इज कॉल्ड ट्रेडमार्क. बच्चों आप मेरे से मेरी बात मान के चलिए कि ब्रांड मार्क पर वन मार्क क्वेश्चन बनता है और ट्रेडमार्क के ऊपर भी वन मार्क क्वेश्चन बनता है. दोनों. और ट्रेडमार्क वो है जिसे लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है ट्रेड के मार्क को, बिजनेस के मार्क. यूज बाय अदर फर्म्स इज कॉल्ड ट्रेडमार्क. Thus, a trademark is essentially a legal term protecting the seller's exclusive right to use a brand name or mark. जो ट्रेडमार्क है वो एक लीगल टर्म जिसमें जो सेलर है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है एक्सक्लूसिवली टू सेल दैट ब्रांड or that service. So brand is having three parts: brand name, which can be vocalized, which can be spoken; brand mark, which is non-utterable, but जैसे आप उसको देखते हो आपको brand name की याद आ जाती है. And the third one is trademark. Trademark is legal protection, against its use by other firms, and it is essentially a legal term protecting the seller's exclusive rights to sell one specific brand or a product. Three very important parts of brand. और बच्चों this is something important from examination point of view. EPB, examination point of view. Qualities of a good brand. Now this is something very very interesting. आपको सुन के अच्छा लगेगा and you will surely take it differently. A good brand name should basically possess qualities of distinctiveness.
एक अच्छा ब्रांड नेम वो है जो अलग से पहचान में आ जाए. इट शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स. इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू स्टैंड आउट अमंगस्ट अ होस्ट ऑफ कंपीटिंग नेम्स. उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए जो अलग कंपनीज उनके नामों से. Thus, in selecting a brand, thus in selecting a brand name, it should not be that difficult to pronounce. It should be easy to understand. Entrepreneur should ask himself or herself what he or she wants to achieve from it. While selecting a brand name, entrepreneur should choose a name which is very very important. बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के बच्चों को. First of all, which is short, simple, and easy to pronounce. Noticeable, easy to recognize and remember. Pleasing, impressive when uttered, when spoken. Neither obscene, negative, offensive or vulgar. Adaptable to packaging, जिसे पैकेजिंग पर आसानी से लिखा जा सके. लेबलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके. टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड लैंग्वेज. लिंक टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए. सिंबॉलिकली आई कैचिंग. कंटेम्प्रेरी, आज के जमाने का होना चाहिए. केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली. और कुछ ऐसा यूनिक होना चाहिए कि जिसे रजिस्टर किया जा सके और लीगली प्रोटेक्ट किया जा सके. तो बच्चों, जब भी आप एक गुड ब्रांड को देखते हो तो उसके पीछे एक गुड थॉट प्रोसेस को देखते हो. along with that अवेयरनेस को देखते हो और रिसर्च को देखते हो. क्योंकि जितनी भी चीजों में आपकी केयरलेस और कैजुअल अप्रोच होगी ना, वो आपको नुकसान ही देने वाली. तो थोड़ा वक्त लगा लीजिए अपने काम पे, उसको ध्यान से समझ लीजिए और हो सकता है दैट विल प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी फंड. ओके. Entrepreneur's perspective on brand name. Let's have a look toward this point. Entrepreneur can follow different policies in choosing brand name, keeping in mind the range of products offered by him or her. जिस प्रकार का प्रोडक्ट entrepreneurs ऑफर करते हैं, उसी प्रकार का वो प्रोडक्ट का नाम रखते हैं और उससे रिलेटेबल नाम. The new product is given a name so that it can get public attention. और इससे क्या मिलता है नए प्रोडक्ट को? पब्लिक अटेंशन. Thus, as the whole meaning and direction of a company can be explained through its brand management strategy, an entrepreneur should be very careful in deciding in choosing its brand strategy. बच्चों, आप देखिए कंपनी की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? जो उसके ब्रांड को मैनेज करने का तरीका हो, वो कंपनी की डायरेक्शन होती है. एक कंपनी एक ब्रांड की इमेज को बहुत ही ज्यादा ना प्रोटेक्ट रख करके रखती है. वो क्या बताती है? वो कंपनी की सोच बताती है. वो कंपनी की ब्रांड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को बताती है. और अगर आपका अप्रोच केयर फ्री है, कैजुअल है, रेकलेस है, तो आपका मतलब है कि आप वेल डायरेक्टेड भी नहीं है एंड यू आर नॉट कीपिंग योर ब्रांड्स इमेज इन पर्सपेक्टिव एंड दैट्स व्हाई योर ब्रांड स्ट्रेटजी इज वीक. An entrepreneur should be very careful in deciding in choosing its brand strategy. रणनीति बनाना बहुत क्रूशल, बहुत ज्यादा क्रूशल. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना था जनवरी 2025 में, 1 जनवरी. रुक जाइए अगर आपकी स्ट्रेटजी तैयार नहीं है. इट इज बेटर टू टेक टाइम एंड customize your strategy, improve your strategy rather than launching on a wrong strategy and then losing market uh, uh, niche and the customers view on your product. थोड़ा वेट करना हमेशा अच्छा होता है. Various types of brands available are
brands with individual names. Here, entrepreneur can choose distinct names for each of his offerings. Every product is promoted based on a separate brand name. Hindustan Unilever Limited has been concentrating on its core business areas, for example, soaps and detergents, and has emerged as the clear leader in the toilet soap industry. Here we are talking about a world's famous brand, which is Hindustan Unilever Limited. They are concentrating majorly on their core business, and that is soap and detergents. The company has launched many line extensions and variants to leverage the high brand equity and its powerful brand names. For example, Lifebuoy. Brand standing is for good health. Lifebuoy Liquid is there, Lifebuoy Personal is there, Lifebuoy Plus is there, Lifebuoy Gold is there to cover various price segments in the health segment. तो Lifebuoy क्या represent करता है? Good health. और अलग अलग कैटेगरी उसको यूज करते हैं, तो उन्होंने उसको कहीं Lifebuoy पर्सनल का नाम दिया है, Lifebuoy हेल्थ, Lifebuoy लिक्विड का नाम दिया है, प्लस का नाम दिया है, गोल्ड का नाम दिया है, टू सर्व ऑल द सेगमेंट्स. Liril, brand name for freshness as a concept. Lux, brand name for beauty soap for film stars. Thus, HUL, which is Hindustan Unilever Limited, ensured for itself a presence in all segments using new brand launches. तो वो अपनी presence सारे segments में दिखाते हैं, health segment में भी दिखाते हैं, freshness में भी दिखाते हैं, और beauty soaps for film stars में भी दिखाते हैं. Family brand name. तो पहला ये था इंडिविजुअल ब्रांड नेम. अब हम बात करते हैं फैमिली ब्रांड नेम. एंटरप्रेन्योर कैन ऑप्ट टू यूज अ कॉमन और सक्सेसफुल फैमिली नेम फॉर देयर सेवरल प्रोडक्ट्स. Either the entrepreneur's name or the company's name may be used for all the products. It is even referred to as umbrella branding. तो बच्चों, entrepreneurs कई बार सक्सेसफुल फैमिली नेम्स को भी यूज करते हैं for their several products. Sometimes they use it for all of their products, and it is being called as umbrella branding. बच्चों बहुत ही यूजफुल टर्म है और इस पर क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अम्ब्रेला ब्रांडिंग? क्वेश्चन 2 marks. तो entrepreneurs can opt to use a common or successful family name. Entrepreneurs use कर सकते हैं common successful family name को for their different products. Either the entrepreneur's name or the company's name may be used for all the products. It is even referred to as umbrella branding. एक ब्रांड के नाम के अंदर पूरा ब्रांड आ जाता है. umbrella branding मतलब एक ब्रांड के अंदर काफी सारी चीजें आ जाती है बहुत अंडर वन नेम. फॉर एग्जाम्पल, Pond's is a mother brand name used for shampoos, talcum powder, cold creams, soaps, etc. तो Pond's ने क्या करना शुरू कर दिया? अम्ब्रेला ब्रांडिंग करनी शुरू कर दी. उसके नीचे क्या क्या ब्रांड्स आ गए? शैम्पूज आ गए, टेलकम पाउडर आ गया, कोल्ड क्रीम्स आ गई, सोप्स आ गए, एक्सेट्रा. मैगी, अ ब्रांड नेम फॉर नूडल्स, सॉसेस एंड मसालास. तो मैगी किस किस के लिए यूज होता है? नूडल्स के लिए, और नूडल्स में भी अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं. फिर सॉसेस भी मैगी के नाम से आती है, और मसालाज आर आल्सो देयर विद द नेम ऑफ मैगी. अमूल, Amul has been used to market a large variety of dairy products. Amul milk, Amul ghee, Amul butter, Amul chocolates, Amul cheese, Amul bread. तो ये क्या हो गया? अम्ब्रेला क्या हो गया? अमूल हो गया. एक ब्रांड नेम हो गया अमूल, और उसके नीचे जितने प्रोडक्ट्स ऐड हो सके उससे रिलेटेड उनको ऐड कर दिया. थे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बट नाम सबको अमूल का दे दिया, नाम सबको मैगी का दे दिया, नाम सबको पॉन्ड्स का दे दिया. तो entrepreneur can opt to use a common or successful family name for several products. उसके बाद बच्चों थर्ड है corporate names. Entrepreneur can choose to utilize their corporate names or logo together with some brand names of individual products. For example, Godrej, Godrej corporate का नाम है, Tata corporate, Bajaj corporate. तो अपने अपने प्रोडक्ट्स के साथ एक Godrej भी यूज कर लेते हैं. तो जब कंपनीज अपने पर्टिकुलर नामों को यूज करती है तो उसे कहा जाता है द यूटिलाइजेशन ऑफ कॉर्पोरेट नेम्स. उसके बाद बच्चों जो लास्ट पॉइंट है दैट इज यूजिंग ऑफ अल्फा न्यूमेरिक. अल्फा मींस अल्फाबेट्स
एंड न्यूमेरिक मीन्स न्यूमरल्स। तो जब इनको मिलाकर एक नाम क्रिएट किया जाता है उन्हें कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक नेम्स। In many industrial products, an alphanumeric name often signifies its physical characteristics, thus creating a distinctive identifier to the product. तो ये एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है प्रोडक्ट की और एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बनाता है प्रोडक्ट। Entrepreneur has an option available to brand his or her products alphanumerically too. For example, एक मारुति की गाड़ी आती है, आज भी आती है, जिसका नाम है SX4। SX हो गया अल्फा और 4 हो गया न्यूमेरिक। लिव 50, ये लिवर का टॉनिक होता है, लिवर की टैबलेट्स होती है जो हिमालयास की आती है। तो लिव हो गया अल्फा, 52 हो गया न्यूमेरिक। I10, I20 एटसेट्रा। पॉपुलर ब्रांड्स आर ससेप्टेबल टू इमिटेशन। जो पॉपुलर ब्रांड्स है उनको इजीली इमिटेट किया जा सकता है। ससेप्टेबल का मतलब होता है वल्नरेबल। दे आर वल्नरेबल टू इमिटेशन, उन्हें इजीली इमिटेट कर लिया, कॉपी तो नहीं किया जा सकता पर जस्ट वल दिस इज यू। Thus, to be on a safer side, the entrepreneur should legally protect his or her brand name or mark through trademarks. तो अपने आप को सेफर साइड पे रखने के लिए entrepreneurs अपने प्रोडक्ट्स के नामों को लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, वाया ट्रेडमार्क। अ ट्रेडमार्क इज मेंट टू गार्ड अगेंस्ट डिट्टो इमिटेशन। और अगर आप डिट्टो इमिटेशन किसी भी कंपनी के ट्रेडमार्क का करते हैं तो यू कैन बी सूड अगेंस्ट इट। The best way for a new brand to succeed is to carry the mantle from the old brand if any. और जो बेस्ट तरीका है किसी भी नए ब्रांड को सक्सीड होने का, तो वो सीख सकता है ओल्ड ब्रांड से एंड ट्राई टू क्रिएट अ यूनिक नेम फॉर हिमसेल्फ फॉर इटसेल्फ। So बच्चों, this is all for today's class where we have talked about branding and we have talked about introduction to branding. We have talked about why products cannot be sold by generic name. We have talked about the total product mix. We have talked about branding as a concept and various terms relating to branding, qualities of a good brand, and entrepreneur's perspective on a good brand. And I have done my complete justice to today's session and provide you ultimate details on all the points. और बच्चों, do not forget to take up the rigorous practice section where I have provided you the complete synopsis of today's class, 10 most important vocabulary words with their meanings in English and Hindi, 10 short questions from this session that can come in the examination along with answers, top 10 objective type questions along with the answers. These are the answers to these questions. True and false from the session. These are the answers. And fill in the blanks from the session. So, bachcho, when you go through the rigorous practice section of Mavericks India Solution, you get to realize this, that we are leaving no stone unturned on one specific class. आप तो कई बार चैप्टर्स के पीछे देखते होंगे, हम तो हर क्लास का आपको एक रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन बना के दे रहे हैं, बिकॉज मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन ऑलवेज बिलीव इन सर्विंग क्वालिटी along with quantity. So, bachcho, until we meet next time, bye-bye for now. God bless you all. Take care of yourself. Keep studying, keep evolving, and keep encouraging more students to subscribe to our channel so that they can take up free lessons on entrepreneurship for class 11 and 12. So, bachcho, until we meet next time, bye-bye for now. God bless you all. Take care.